Good evening, everyone. So, my name is Hashin. With aspirants, will mostly be regarding my journey. So, I'll start it briefly about my journey. So, I'm an engineer, and I graduated from IIT Madras with engineering physics as my major. I graduated in 2021, and I will take up questions. But then let me just give a brief introduction about my journey. Yeah, then I'll take up questions. Yeah, I graduated in 2021 and started the journey for UPSC immediately after graduation. Not so immediately, but then yeah, around December. And I gave my first attempt in civil service examinations in 2022, and I failed to clear it. Then I realized I needed coaching, and then I had come to Bangalore to take coaching. Then I was able to clear 2023 prelims for both CSC and Forest Service. I was able to give Forest Service interview. I was not so fortunate to give Civil Service interview, and I got 142 rank in Indian Forest Service. And then yeah, that's pretty much sums up my journey. Yeah. So I can start with few FAQs about prelims, and more or less this conversation will be about prelims, and I'll be comfortable to talk about mains for GS2, GS4, and SA. My optional scores were not so good. My optional is mathematics, by the way. Yeah. So can we can start with prelims. If anyone has certain questions regarding prelims, you can please post it. Uh, then we'll gradually go to mains and then interview if possible. One funda that I would like to share about bouncers in prelims. Yeah, so one funda I'd like to share about prelims is it's a game of relative competition rather than considering it as you're the only player in it. So लास्ट टाइम के अगर आप लोग 2023 के 2024 का मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, so I would not talk about it. I will not talk. I will come to my option later on, but then I will talk about my prelims days right now, and then we will gradually move to mains and then interview if possible. Yeah. So prelims ka. Uh, so I not talk about 2024 prelims or the ones before 2023. I would like to talk about 2023 prelims which I had faced and cleared. Yeah. So 2023 prelims में अगर आप देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ 75 था, around 75 to 76. So out of 200, we were asked to score around 76 marks. So बाउंसर्स को हम उतना ध्यान में नहीं रख के अगर अप्रोच करेंगे तो प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करेंगे. सो मेरा हमेशा ये नरेटिव रहा है प्रीलिम्स का दैट वील हैव अराउंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम द वंस वी ऑलरेडी नो. जैसे बेसिक्स में होंगे, बेसिक से बहुत डिराइव करके होंगे. सो माई फंडा विल बी जस्ट अप्रोच इट विथ मोर रिविजन ऑफ बेसिक्स rather than going on with करंट अफेयर्स या फिर फोकसिंग मोर ऑन हाउ दे कुड ट्रिकर्स और इन बाउंसर्स. अगर आप अभी भी 2023 के पेपर लेके करोगे तो यू विल प्रॉब्ली स्कोर अराउंड 60 to 70 वेरी इजीली, बिकॉज अगर आप बस बेसिक्स अच्छे से किए हो. सो या दिस इज माय मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर किया है प्रीलिम्स. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने विदाउट मतलब उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं दिया था, सो टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट है, बट देन फर्स्ट अटेम्प्ट में बोल सकता हूँ मैं फॉरेस्ट सर्विस में. हाँ, सो सेकंड अटेम्प्ट में हम कंसिडर करके जाएंगे. आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई आई वुड लाइक टू कॉल इट एज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मेरा एक्चुअल फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2022 में था, आई वॉज मोर वरीड अबाउट करंट अफेयर्स rather देन बेसिक्स. आई थिंक आई हैड रिवाइज बेसिक वंस और ट्वाइस, और मैं दिसंबर या नवंबर में मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. मोर और लेस एक पेन ड्राइव. हाँ, प्री का बुक्स तो वही जो नॉर्मल मार्केट में बोलते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मैंने इकोनॉमिक के लिए नितिन सिंघानिया किया है, एंड आई फील दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. थोड़े लोग और भी बहुत सारे करते हैं, बट देन नितिन सिंघानिया इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर मी. और मैं जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत रिविजन, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन एनी अदर बुक. एनसीईआरटी कर लो बोथ 11th एंड 12th. और बाद में साइंस एंड टेक का हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मंथली मैगजीन्स और कोई भी करंट अफेयर्स. जो कुछ भी है साइंस एंड टेक का है, और जो एनवायरनमेंट का है. या हम मेंस का बाद में बात करेंगे. पहले प्रीलिम्स का एक 10-15 मिनट में हम इजीली कवर कर सकते हैं. या हाँ, सो प्रीलिम्स का अगर हम देखें तो हाँ, सो कमिंग टू साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट,
इन दोनों ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हमें मंथली मैगजीन्स या PT365 थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, not to get questions out of it from exam, but then the only importance of PT365 या फिर कोई भी, मैंने PT365 किया था, तो द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ इट इज विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि क्या चल रहा है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रादर देन कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कौन से एरिया से आएंगे. सो या इन दोनों ये दोनों सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हमें थोड़े करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना होगा, मगर फिर भी बेसिक्स के साथ भी ये सॉल्व किए जा सकते हैं. वी शुड नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट मोर देन नेसेसरी. Happy, I'm sorry, I would not like to address it, but then देखिए, कोई भी कोच, या सो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज़पेपर यू शुड रियली नॉट सब्स्टिट्यूट न्यूज़पेपर विथ एनीथिंग. Newspaper should be a habit rather than an instrument to clear this exam. It would hardly take you 40-45 minutes to just brief it about. Don't make notes out of it, don't make anything out of it. So just read newspaper as a place where you can just be aware of all the events that's happening. If you skip it for a day, it's of really of no benefit or disaster. You can skip it some days when you're not able to study, you can study the other day. It's nothing related to exam, but then you have to do it just for the sake of doing it. Or it's a very good habit to be aware of your surroundings. और लोकल न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोकल एडिशन वाला, नॉट रियली हमारा लोकल न्यूज़पेपर. या बेसिकली I don't really rely on coaching institutes notes. I rely morely on standard reference book क्योंकि they are more addressing the concepts of the subject rather than just about the exam. So I would rely more on the standard books and then do PYQs holistically rather than just focusing on say coaching notes. It might be helpful for many, but then I personally wouldn't recommend just sticking to coaching notes. If you're still following coaching notes, you can still follow it, but then I would like to still complete my standard reference books. And regarding prelims, one major fund of prelims is PYQs. Many people would preferably do just they would go beyond 30 years or even beyond 30 years, or stick to just 2 or 3 years. It's a very very vague game, to be really honest. I did it from 2013 to 2023. सी देखिए, मेरा मेरा बहुत सिंपल था प्रीलिम्स में, बिकॉज एक स्टेज है प्रीलिम्स जो इट इज यूज टू फिल्टर आउट एस्पिरेंट्स. सो मुझे जो कोई भी पूछा है अभी तक, इट वाज मोर अबाउट प्रीलिम्स कैसे किया जाता है, प्रीलिम्स किया कैसे एड्रेस करना होता है. सो पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट दोनों एक स्ट्रैटेजिकली आपको अप्रोच करना पड़ेगा. टू मी पीवाईक्यूज और highlight those areas where I'm supposed to revise more, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकता है. इट्स नॉट रियली कि यूपीएससी पीवाईक्यू दे के ही पेपर सेट करता है. पीवाईक्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू उस सब्जेक्ट का एसेंस बताता है, व्हाट एग्जैक्टली दैट सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट, कहाँ पर वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी इंपॉर्टेंस को लेके हमें एग्जाम प्रिपेयर करना होता है. सो बेसिकली पीवाईक्यूज इज अ गाइडिंग लाइट, इट्स नॉट रियली अ फाइनल ऑप्शन या फिर ओनली ऑप्शन. सो इट रियली इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट. उसको गाइडिंग लाइट जैसे ही देखिए. देयर इज नो vast difference that you'll get by doing going beyond 30 years or even till 30 years. You'll just be able to practice PYQs, or rather than just practicing PYQs, I would say approach them strategically. कौन से themes देखो, कैसे themes आ रहे हैं, and based on those themes you are supposed to work on your PYQs rather than just doing PYQs for the sake of doing it. This is major fund about PYQs. Go just for 10 years is sufficient. Don't go beyond 10 years. It would yield very less benefit. But then if you have time, you can really go beyond it. Or mock tests, I personally just did 10 full end tests. कोई भी, I would not take the coaching center which I opted mock test for. But then बस 10 mock test दिया है and one open mock test दिया है, उतना ही है. I didn't really, and I scored 85 if someone is really 83, 85. I don't remember the exact marks. I think it's around those marks. So I don't think it's really necessary for us to solve 30, 40 mock full and test. 30, 40 full and test. But then I would just say 10 mock tests. और mock test का मतलब ही होता है we are supposed to practice. So I have a theory that mock test दो चीजें के लिए करता है. One, to get aptitude of MCQs, and one, to know whether you're strong in basics or not. My whole funda about prelims revolves around basics, and I don't think I will never move beyond it. Basics is the most important part. So how
जितने भी मॉक टेस्ट दो, जस्ट फिगर आउट why are you giving those mock tests. I decided I will just give 10 mock tests because मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड ठीक था प्रीलिम्स वाले एमसीक्यूज में. सो आई डोंट रियली हैव टू बिल्ड एमसीक्यू एप्टीट्यूड. ओनली थिंग आई हैव टू बिल्ड इज माय बेसिक्स. सो आई फिगर्ड आउट इन 10 to 12 मॉक टेस्ट कि हाँ मेरा बेसिक्स ठीक है एंड माय एप्टीट्यूड इज आल्सो ऑलमोस्ट ऑन द वेरी गुड लेवल. सो इसलिए मैंने बस 10 करके उसको रिवाइज ज्यादा किया rather than focusing on more mock tests. So you have to figure out until you develop that aptitude और आपके बेसिक्स जब तक स्ट्रांग नहीं होगे, you have to keep giving tests. Don't limit yourself to a certain number. सो इसके बाद हम करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैसे कवर करते हैं. लक्ष्मीकांत इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. या जैसे यहाँ पर बहुत पूछा जा रहा है, लक्ष्मीकांत इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आई डेंट रेफर टू एवरी बुक इन मार्केट. जो लक्ष्मीकांत मैंने किया है तो उससे मैं बोल सकता हूँ इट्स वेरी वेरी गुड बुक फॉर प्रीलिम्स. और उससे मोर और लेस बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. यू हैव टू टारगेट दोस 40 बेसिक क्वेश्चंस और गेट एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी इन इट. So 90% accuracy in your basic questions. जैसे मैं अगर स्प्लिट करूँ तो 40 क्वेश्चंस बेसिक से आने वाले हैं और अदर 40 क्वेश्चंस थोड़े करंट अफेयर्स को मिक्स करके आने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस जो आप बाउंसर कैटेगराइज करते हो उनमें से आने वाले हैं. अगर मैं 36 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट यील्ड करने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस पॉजिटिव, जिसमें हमारे 70 मार्क ऑलरेडी बन गए प्रीलिम्स में. और लास्ट टाइम अगर 2023 का देखा तो यू जस्ट नीड 76 मार्क्स टू क्लियर दैट. इफ योर सीसैट इज गुड देन 76 मार्क्स चाहिए था, जो कि बाकी क्वेश्चन से हो जाएगा आराम से. रैंडम अगर आप करोगे तो भी हो जाएगा, बट आई वुडंट रिकमेंड इट. बट देन हाँ, सो इतना ही करो. बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखो प्रीलिम्स में बिफोर गोइंग इनटू करंट अफेयर्स. बेसिक्स जब तक स्ट्रांग नहीं होगे, there is no point going into current affairs. And this is what I learned in my first failure in prelims. जब मैंने मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स फेल किया था 2022 में, आई रिवाइज बेसिक्स जस्ट वंस, जो कि काफ़ी नहीं है. यू हैव टू डू इट लाइक 4 or 5 टाइम्स एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू मार्क इन एग्जाम. सो 4 to 5 टाइम्स करना होगा और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देके समझना होगा कि आप सेक्शनल अगर आप कर रहे हो तो सेक्शनल मॉक्स देके करना होगा इफ़ यू आर एबल टू गेट द बेसिक्स राइट. और उसके बाद आपको कोई भी करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन, ईयरली मैगजीन कुछ भी कर सकते हो. आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ करंट अफेयर्स क्योंकि इट्स अ डिसीविंग डीमन. दैट्स आई एम गोइंग टू टर्म इट एज डिसीविंग डीमन. क्योंकि एक तो आपको वो बेसिक से दूर लेके जा रहा है और एक आपको ऐसे रेल में लेके जा रहा है जो बहुत वेग है. तो करंट अफेयर्स को बहुत लास्ट प्रायोरिटी दीजिए. इट्स नॉट रियली अ पेनाकिया टू क्लियर प्रीलिम्स. सो अगेन एम्फसाइजिंग ऑन इट, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ मेरा सोर्सेस क्या क्या है. इकोनॉमी के लिए होगा नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और एनसीईआरटीज. हर चीज़ में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देन एनसीईआरटी नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, रीड इट एज बिल्डिंग योर बेस सो दैट यू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बेटर. ठीक है, तो ये रखिए आपका. और हाँ, इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम और जियोग्राफी में बस एनसीईआरटी. जीसीलियम कर सकते हो, बस ब्रीफ रीडिंग दीजिए. देयर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग इट होलिस्टिकली. हाँ, तो जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी. और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए मैंने मेरा कोचिंग नोट्स किया क्योंकि मोर और लेस पीवाईक्यू सारे एड्रेस हुए थे और मेरे जो सर थे वो बहुत अच्छे थे. तो उनका नोट सफिशिएंट था, मगर आई कॉम्प्लीमेंटेड इट विद PT 365 और मंथली मैगजीन्स बहुत. हाँ, तो इतना ही कीजिए प्रीलिम्स से, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए क्योंकि आप अवेयर रहोगे कि क्या चल रहा है. सो मोर और लेस ट्रेंड्स के बेस पे जो क्वेश्चंस आने वाले वो आपको. सीसैट एक ऐसा डाइसी है क्योंकि मैंने तो कभी सॉल्व प्रैक्टिस नहीं किया सीसैट का. बट देन आई डिडंट गेट सो ग्रेट मार्क्स क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा कम आया. बट देन थोड़े लोग, आई हैव ऑब्जर्व पीपल प्रैक्टिस कैट के पेपर्स, जो पुराने वाले पेपर्स है कैट के, फॉर सीसैट. और टॉपिक्स तो वही शायद नंबर सिस्टम या फिर नॉर्मल अलजेब्रा वाला, इतना ही. जो क्वांट के वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो शायद मैनेज हो जाएंगे. क्वांट के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में वो रेशियो प्रोपोर्शंस और अलजेब्रा वाला जो कुछ भी है, टाइम और इंटरेस्ट, वो सब मैनेज हो जाएंगे. डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी टॉपिक, ट्राई टू कवर एवरीथिंग. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओगे तो यू माइट नॉट रियली बेनिफिट फ्रॉम इट. सो सीसैट ट्राई टू कवर इट फ्रॉम डे वन. एक 10-15 क्वेश्चन तो कर सकते हो एक आधा घंटा देके.
सो ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक होलिस्टिकली इन क्वांट. अगेन हाँ, अगर आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं है क्वांट में, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो, और बाकी थोड़े जो बहुत डिफिकल्ट होंगे टॉपिक्स वो आप इग्नोर कर सकते हो. तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक इट्स सीसैट, क्योंकि क्वालिफाइंग है, आई वुडंट एम्फोसिस अ लॉट ऑन इट. हाँ, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का आई विल कम टू इट इन माय मेंस एस्पेक्ट. अभी के लिए अगर कोई भी जो मैंने बताया उसके अलावा कोई प्रीलिम्स में कुछ है तो आप पूछ सकते हो, ताकि मैं. हाँ, सो देयर वाज अ क्वेश्चन दैट जेडब्ल्यू ट्रेंड भी पता नहीं है क्या हो रहा है जेडब्ल्यू में, तो आई एम नॉट रियली अ पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो लेट, अगर प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं मेंस का जो भी मेरा स्ट्रैटेजी था वो बता दूंगा. और मेरे मेंस मैंने हाउ टू, हाँ, प्रिपेयर फॉर एसे, हाँ जी, ठीक है. सो कंसिडरिंग देयर आर नो क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, आई विल स्टार्ट माय मेंस प्रेप. हाँ, तो आई विल टॉक अबाउट GS1, GS2, GS4 और एसे. ऑप्शनल का मैं बताऊंगा, बट हाँ जी, नो, मैराथन वीडियोस आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ इट. सो आई हैव अ कॉन्सेप्ट कि अगर आप पूरा एक बार डंप करने जाओगे तो इट वुडंट रियली अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू. रादर स्प्लिट द मैराथन वीडियो इनटू सेक्शंस. हाँ, सेक्शंस में डिवाइड कीजिए. सो एक एक सेक्शन एक एक दिन करते जाइए, रैदर देन कवरिंग इट फॉर इन वन डे, क्योंकि यूज तो नहीं होगा, उतना रिटेन नहीं कर पाओगे एग्जाम के लिए. सो एक एक तो समझिए और उसको ग्रास्प कीजिए कि क्या बोला जा रहा है वहाँ पर. और मोर देन, मैंने तो कोई मैराथन वीडियोस नहीं देखे. इट्स बेटर इफ यू हैव योर ओन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी और प्लान, कब प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. सो रिवीजन के लिए आपका खुद का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन रिलाइंग ऑन समवन एल्स. सो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैराथन वीडियोस. और कोई भी जो भी वीडियोस है यूट्यूब में आ रहा है, थोड़े देख सकते हो आप, बट देन जैसे मैपिंग का देख सकते हो, करंट अफेयर्स का देख सकते हो, दैट इज फाइन. बट देन बेसिक्स के लिए आई वुडंट रियली, वो जो बोलते हैं पॉलिटी रिवाइज्ड इन 10 आवर्स, ऐसे ये सब तो नहीं चाहिए. दिस इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, नेसेसरी तो नहीं है. हाँ, सो हाँ, लक्ष्मीकांत प्रिलिम ओरिएंटेड, बट GS2 means PYQ are very analytical. How to study GS2 subject. Again, so I have so mains के लिए GS2 I scored 110, I guess. I'm not really sure. Around, हाँ, 110 के आसपास ही मार्क्स. हाँ, तो आई वुड सजेस्ट श्रुति शर्मा मैम के जो AR1 है, आई थिंक 2021 के, हाँ, उनके नोट्स देखिए, उनके आंसर कॉपीज देखिए एक बार. इट्स मोर और लेस प्रीलिम्स कंटेंट ही है, बट देन शी हैज हर आंसर्स रिफ्लेक्ट की हर क्वेश्चन एक थीम्स में लेके जा सकते हैं. सो देर आर थीम्स इन पॉलिटी विच आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स. और आई थिंक शिविन सर जो IRS थे, और उनके चैनल में अभी शायद PYQ एनालिसिस है, जनरल स्टडीज 2 के, सारे जनरल स्टडीज के इनफैक्ट, उनमें आपको थीम्स मिल जाएंगे कि कौन से थीम्स से मिल रहे हैं क्वेश्चन. वो एक आप देख सकते हो उसको. और उसके बाद आप उनमें से शायद आप देख पाओगे कि कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहा है. और हाउ टू राइट एन आंसर, आई बिलीव यू कैन रेफर टू श्रुति शर्मा मैम्स आंसर कॉपीज, जिन उनके आंसर बहुत अच्छा है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है जिन जो मैं रेफर किया था. सो दे विल टेल यू हाउ टू रियली अप्रोच मेंस फॉर GS2. और हाँ, बस लक्ष्मीकांत पढ़ के आपको नोट्स नहीं बन जाएंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. बट हाँ, एक ये होमवर्क कीजिए, कैसे सिलेबस क्या है मेंस का, प्रीलिम्स का क्या पूछा जा रहा है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, once you understand that, I think it will become easy for you. Answer writing, देखिए, you have to start from day one preferably, क्योंकि एक इनर्शिया ब्रेक होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए. आई स्टार्टेड फ्रॉम day one. आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट आंसर, जो कि बहुत गंदा था, टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत गंदा था. और मेरा सेकंड आंसर मैंने मेरा प्रेफरेबल टॉपिक जैसे साइंस एंड टेक से लिखा था, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले. सो आंसर राइटिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम day one. वो इनर्शिया ब्रेक कीजिए. हाउएवर वर्स द आंसर इज, ट्राई टू राइट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट. आपको प्रैक्टिस करना है, एक तो टाइमिंग का और एक कंटेंट का, वो एनरिच होते जाएगा. एस्से, या लेट मी स्टार्ट विथ एस्से, क्योंकि एस्से एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डाइसी है. थोड़े लोगों को एकदम 120 से 60 लेके जा सकता है, या फिर 60 से 140 लेके जा सकता है, और बहुत वेरिएशन है उसमें. सो मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि ऐसे में मुझे 140 तो नहीं चाहिए, 140 150 जैसा ऐसे तो मैं नहीं लिखने वाला, बट आई विल मेक श्योर आई विल गेट अराउंड
130 प्लस चाहिए था मुझे, एंड आई वाज स्टिकिंग टू दैट काइंड ऑफ एसे जो अबव एवरेज है और टॉपिक को जस्टिफाई करता है। इतना ही किया है मैंने। और प्रिपरेशन वाइज हर वीक एक एसे लिखता था मैं। और माय इनिशियल एसेस वर वेरी बैड। उसमें ना कोई थीम था, ना कोई मैंने एसे का थीसिस लिखा था, और ना कोई कोहेरेंट फ्लो था। अगर आप एसे के सिलेबस देखोगे तो दे आर नॉट आस्किंग यू टू मास्टर द वे ऑफ राइटिंग एसे। बस एक कोहेरेंस होना चाहिए और सिंपल स्ट्रक्चर रहना चाहिए उसका। कोई ग्रामेटिकल एरर्स मत कीजिए। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न पंक्चुएशन रूल्स कहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि वरना सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो सकता है। और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ शिफ्ट करने का वो एक तरीका देखिए। ग्रेवाल सर का अच्छा था, विक्रम ग्रेवाल सर का जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है। और श्रुति शर्मा मैम का भी अच्छा था। सो इन दोनों का आप देख के प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर प्रेफरेबली कोई इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल से कोई अगर क्लियर किया है से विद से 140 150 मार्क्स, उनका आप देख सकते हो कैसे ट्रांसिशन करते हैं। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना। लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप मिस भी कर रहे हो तो मेक श्योर वो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनर को दिखाओ कि हाँ मेरा ऐसे इसके रिवॉल्व इसके अराउंड होने वाला है। तो पहले स्टार्ट राइटिंग एसेस। इट्स नॉट दैट यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग एसेस फ्रॉम बिगिनिंग। इनिशियली आप जीएस तो आपको एक अच्छा नॉलेज रहना चाहिए जीएस में क्या हो रहा है या क्या नहीं है एक एक सब्जेक्ट में, ताकि आप ऐसे लिख सको उसके ऊपर। और फिलोसॉफिकल एसेस इज द बेस्ट एसेस टू राइट, क्योंकि वहाँ पर आपको रियली एक बहुत बड़ा स्कोप मिलने वाला है आपको लिखने के लिए। यू आर एबल टू navigate ऐसे इन योर ओन वे। आपके खुद का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एंड हाउ वेल यू डू इट इज बेस्ड ऑन योर स्किल। हाँ, so this is one thing in essay, practice makes it perfect rather than thinking कि हाँ शायद इनका रेप्लिकेट कर दूँ तो हो जाएगा। डू नॉट बिलीव इन कि एक स्टाइल है ऐसे का। मैंने 2 एसेस लिखे थे, और मेरे द वे आई चूज एसेस, आई जस्ट लुक एट द फर्स्ट टॉपिक। इफ दैट फर्स्ट टॉपिक इज समथिंग अंडरस्टैंडेबल टू मी, आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड राइट एन एसे। आई एम नॉट रियली वरीड कि कौन से टॉपिक्स चुनूँ मैं एग्जाम में। Okay, just one question going back to prelims. Someone's asking about CSAT strategy. देखिए अराउंड फेब्रुवरी आपको सॉल्व करने जितना तो आना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जितना आना चाहिए। एंड एवरीडे यू कैन जस्ट स्टार्ट 5 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। जस्ट मेक श्योर इतना आप करोगे एट द वेरी लीस्ट। और फुल एंड टेस्ट जब भी दोगे, ओपन या फिर कुछ भी हो जाए मॉक वाला, आप उसके साथ सीसैट पेपर कीजिए। गेटिंग 66 इज नॉट रियली अ डिफिकल्ट टास्क इन सीसैट। अगर आप उसको मतलब पूरा डर के ना ले उसको, इट्स वेरी सिंपल। आपको बस एक स्ट्रैटेजी लगाना है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। डोंट बी स्टक विथ इट। और कॉम्प्रिहेंशन बहुत तेजी से करना होता है विदाउट मेकिंग एनी एरर्स, बिकॉज और उसके लिए आप न्यूज़पेपर, यहाँ पर न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। द वे यू रीड इट एंड द वे यू अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन। और just make sure your quant is not so weak by the time you're approaching February, and एक February आने के बाद you can start solving questions around 5 to 10 questions every day you can read। topic wise अगर जाओगे तो और better रहेगा। और YouTube में बहुत सारे resources है, I do not know because I didn't refer them personally, so देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे solve करते हो और solve करो। You can go beyond PYQs। हाँ, सो अभी मेंस के लिए आते हैं। सो समवन वाज टॉक अभी जीएस 2 के लिए यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। मैंने वो जो एक्सरसाइज बोला था शिविन सर के टेलीग्राम चैनल में देख के, नो इट्स नॉट रियली अबाउट जीएस। आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन कहीं और से भी ला सकते हो मेरे ऐसे इसमें। हाँ, मैं सो लेट्स टॉक अबाउट एसे फॉर अ व्हाइल। आई विल एड्रेस एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली। लेट्स मेक श्योर अभी बस एसे के बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सो ऐसे में आप बस जीएस कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जीएस कंटेंट तो एक जनरल स्टडीज है एज इट सेज, और ऐसे में आपको खुद का कुछ व्यू देना है उसके ऊपर। सो एक जीएस में आप केस स्टडीज यूज कर सकते हो ऐसे में। दिस इज द ओनली वे जीएस इज गोइंग टू हेल्प यू। एक केस स्टडी ले सकते हो, और इट्स वेरी ब्रॉड। आपको कहीं ऐसे में कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है कि आपको जीएस का ही लिखना होगा। तो यू कैन गो बियॉन्ड बुक्स, पढ़ सकते हो, बुक से आप ले सकते हो अगर टाइम है तो। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, तो मैं बुक्स के समरीज पढ़ता था बहुत ज़्यादा। सो समरीज पढ़ के आई वुड अंडरस्टैंड व्हाट द बुक इज टॉकिंग अबाउट, या फिर कोई वीडियोस देखता था उसके ऊपर।
बट देन अगेन कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है एसएस में, जीएस के आंसर भी लिख के आओगे तो 120 के आसपास आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर कोहेरेंसी इज मेंटेन, और जो आप बोलना चाहते हो वो बहुत डायरेक्टली बोल रहे हो रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश इन एसएस। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी मेरा 125 आया था। सो या आई वाज स्टिल बिलो माय एक्सपेक्टेशंस, मुझे 130 प्लस चाहिए था एसएस में। हाउएवर या इट्स जस्ट प्लेस आउट, हमारे हाथ में इतना ही है जितना हम कर सकते हैं। जीएस 2 में केसेस आर्टिकल्स जो पॉलिटी में है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक सेपरेट शीट में रखिए। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अनुदीप सर, अनुदीप दुरिशेट्टी सर, उनका सेपरेट एक पीडीएफ था। आप उसको देख के आप अपना खुद का एक पीडीएफ बना सकते हो केस और आर्टिकल्स के ऊपर। और थीम्स पे रखिए आर्टिकल्स अपने, जैसे पार्लियामेंट है तो उनके ऊपर सेपरेट सारे आर्टिकल्स का क्या क्या मीनिंग है वो एक रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इंट्रोडक्शन में या फिर बॉडी में भी। और कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक रखिए हमेशा, कोई भी जीएस में कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। आप क्रिटिसाइज करिए, देयर इज नो इशू इन क्रिटिसाइजिंग, बट देन एज यू आर trying to be a civil servant, yeah, so you really want to keep the conclusion very optimistic. How do you identify you? हाँ, इसके लिए एक टॉपर का चैनल है जहाँ पर उन्होंने बुक सजेस्ट किया था, जस्ट टेल यू उनका नाम, तो उनके समरी सब पढ़ सकते हो। टॉप चैनल का नाम है शायद एन अप्रोच टू यूपीएससी सीएससी, और टॉपर का नाम है अर्पित गुप्ता सर, जिनका AR 54 आया था। शायद उनके टेलीग्राम चैनल में बुक्स थे, आई थिंक आई हैव टू वेरीफाई इट वंस अगेन। बट हाउएवर हाँ, टॉपर्स ने एक्चुअली दिया है कौन से बुक्स उन्होंने पढ़े एसए के लिए, वो आप पढ़ सकते हो। हाँ, ओके, सो या मैथमेटिक्स ऑप्शनल आई वुड रियली नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैंने कभी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं किया मैथमेटिक्स ऑप्शनल का। आई स्कोर्ड 180 अराउंड इन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि उतना अच्छा मार्क नहीं है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। सो प्लीज आई रिफ्रेन फ्रॉम इट, बट हाँ, बेटर गो थ्रू ब्लॉग्स। कनिष्क सर के ब्लॉग मैंडेटरी है, जैसे अभी यू विल अंडरस्टैंड हाउ द सब्जेक्ट इज सपोज टू बी अप्रोच। और शायद अर्पित गुप्ता सर भी शायद मैथमेटिक्स के ही थे, उनका भी एक चैनल देख सकते हो आप, AOFS 2025, राइट। हाँ, सो मैथमेटिक्स आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मैथमेटिक्स ऑप्शन में। हाँ, ओके, सो दैट्स अबाउट essay, and I am really sorry if someone's really here for mathematics. I don't think I'm the right person to ask. अगर होता तो I would gladly help. I really wanted to help people with maths option, but then I personally do not think I'm the right person. Around about 2025 strategy, देखिए आपका जो भी IFOS देना चाहता है उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है प्रीलिम्स में। सो आपको प्रीलिम्स बहुत अच्छा करना होगा। सो प्रीलिम्स अच्छा करने के लिए यू हैव टू लाइक रिवाइज बेसिक्स वेरी मच। जो आप मैंने बोला था जो 40 बेसिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स में, हमेशा हर पेपर में अराउंड 40 बेसिक्स क्वेश्चंस आने वाले जो कर सकते हैं, अनलेस वी डोंट रिवाइज बेसिक्स वेल। और मैं थोड़ी 100% एक्यूरेसी बोल सकते हो, यू कैन रियली हैव 80 to 90% एक्यूरेसी दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर समवन हु वांट टू क्लियर विद फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ, राइट। सो इसके बाद आपको न्यूज़पेपर बहुत रिलीजियसली पढ़ना होगा, और यू हैव टू रियली रीड एनसीईआरटीज वेल, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। तो प्रेफर यू हैव रियली लेस स्कोप टू मेस इट अप। सो आई थिंक यू हैव टू रिवाइज बेसिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, और आपको करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी उतनी ही रिलीजियसली करना होगा, क्योंकि आई पर्सनली डू नॉट टारगेट 110 प्लस और समथिंग. So I really don't value current affairs materials a lot, but then I have seen people who value it a lot क्योंकि उनको फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ क्लियर करना होता है. तो आई वुड से बाय जनवरी यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2025, एंड आई थिंक जनवरी इज द राइट टाइम. और उससे पहले आपको दोनों ऑप्शनल कंप्लीट कर देना चाहिए. बाय दिसंबर आपको दोनों ऑप्शनल कंप्लीट कर देना चाहिए. With maths, forestry is the best option. It's easy to prepare and it takes less time to prepare. Resources are available already, और बहुत सारे अकेडमीज हैं जो ऑलरेडी PYQ सॉल्व करके देते हैं, उनका आप देख के रिव्यू कर सकते हो. आई स्पेंट वेरी लेस टाइम इन फॉरेस्ट्री. आई स्कोर 185 और समथिंग. आई रियली डू नॉट नो माई मार्क्स, अराउंड इसके ही आसपास होंगे.
सो सो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शनल है विथ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बहुत ड्रेनिंग सब्जेक्ट है, टाइम बहुत लेता है। तो हाँ, सो मैथ्स के साथ फॉरेस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड फॉर एसएस, aspects of essays that it should have good essays. देखिए again, you are not asked to write an essay like how an English literature student is going to write. अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें बस लिखा है कोहेरेंसी। कोहेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक उस एसे में, और जो बताना चाहते हो बहुत क्लियरली बताना होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसे के लिए। यू आर नॉट आस्क्ड टू कोट मेनी ऑथर्स, मेनी बुक्स। मैंने तो एक भी बुक कोट नहीं किया है। आई जस्ट रिलाइड ऑन जनरल स्टडीज और थोड़े केस स्टडीज जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, इन्हीं के ऊपर मैंने एसे लिखा है। और मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, क्योंकि मैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन और I believe how you introduce in essay is going to make a lot of difference with body obviously, but then introductions plays a very important role. So coherency, flow, or to the point essay with good introduction is very good essay. And एक aspect है जो बहुत लोग मिस करते हैं, even I'm looking at papers now जो थोड़े बुरे हैं एसेस। जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में देर इज नो लिंक। जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो कभी फिर से लाते ही नहीं हो उस एसे में। सो इंट्रोडक्शन एक सेपरेट सेगमेंट जैसा बना देते हो। सो मेक श्योर वो इंट्रोडक्शन कुछ वैल्यू रखे अपने एसे में। यूज इट इन बॉडी अगेन और इन कंक्लूजन। डोंट रीराइट इट अगेन एंड अगेन, बट कहीं ना कहीं उसका मेंशन तो होना ही चाहिए। So you can't really just segregate essay into some parts and keep them separated. You have to integrate them and also maintain coherency. और जितने आते हैं and approach every essay topic as if you are approaching a question. ठीक है, तो उस क्वेश्चन एड्रेस करने जैसा कीजिए। So if dissect the essay topic into many questions as possible, then arrange those questions in a way, जो आपको टाइम मिलता है ना, 1.5 आवर रहता है, 1 आवर में आपको essay लिखना है और 20-25 मिनट्स में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ड्यूरिंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग अरेंज दोज क्वेश्चंस जो आपको उस टॉपिक से मिल रहा है इन अ वे दैट, हाँ, सो अरेंज दैट इन अ वे कि आपको लगे कि इस अरेंजमेंट में कोहेरेंसी बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है। हाउ आई एम गोइंग टू राइट, आपके राइटिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये आपका परफेक्ट है तो कोई भी ऐसे आपका बुरा तो नहीं होगा, एवरेज या अबव एवरेज ही होगा। एंड हाउ टू गो फ्रॉम एवरेज टू अबव एवरेज इज above average is your game, really your game। हाँ, तो स्लोली फियर, एक तो मैं बोलता हूँ फियर तो मत रखिए। फियर तो मत रखिए, यू आर नॉट रियली लूजिंग एनीथिंग, एक रखिए। व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जाम, यू नो यू स्पेंड लाइक 1 year ऑफ योर लाइफ इन इट। और बहुत बहुत कठिन होता है कि 1 year दे के आप इतना एंग्जाइटी रखे उस एग्जाम के ऊपर। बट आई एम गोइंग टू से, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ इट इन अ बाइनरी स्टेट। इधर आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे, फियर हैज नो रोल टू प्ले इन इट। अगर फियर से कुछ यूज होगा तो शायद सब लोग ऐसे डरते ही बैठेंगे। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट अलॉट। बस दो बाइनरी में देखिए, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करोगे तो यू रियली हैव गुड चांसेस टू क्लियर इट। अगर आप अच्छा नहीं प्रिपेयर करोगे और डरोगे तो इट्स ऑन यू, इट्स रियली ऑन यू। एटलीस्ट डू जस्टिस टू योर प्रिपरेशन। जो आपने 1 साल दिया था उसको जस्टिस दीजिए और बिना डरे जाके एग्जाम दे के आइए। एनी एग्जाम दैट यू गिव, नॉट जस्ट यूपीएससी, एनी एग्जाम और एनी इवेंट इन योर लाइफ। माई यूनिक स्ट्रेटेजी टू राइट इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट रियली ग्रेट फैन ऑफ स्टेट पीसीएस, और मैं शायद नहीं सजेस्ट करूंगा अलॉन्ग विथ यूपीएससी, क्योंकि वो डाइवर्ट करता है आपको। बट देन यूनिक स्ट्रेटेजी राइट इंट्रो इन एसेस। हाँ, सिंपल रखिए। यू बहुत ज़्यादा आप हमारे हिस्ट्री या मिथोलॉजी कहीं से भी ला सकते हो। कोई भी ग्रीक मिथोलॉजी हो सकता है, कोई भी सिविलाइजेशन का हो सकता है। उनका कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने जिस इस टाइम, एक मिनट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट आई विल जस्ट गूगल इट। एस्से टॉपिक्स 2020। हाँ, जो मैंने एस्से लिखा था इस बार। हाँ, so in my second section B, the essay was girls are weighed down by restrictions, boys with demands। ठीक है, तो ये मेरा essay था। And I had used an example of भीष्म पितामह और अंबाजी, right? How these both characters fiddled in a way कि उनको restrictions और hurdles face करना पड़े। एंड बस ये एग्जाम्पल नहीं है, इट्स हाउ यू प्रेजेंट इट।
ये प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है, राइट? एंड डोंट रन बिहाइंड यूनिक थिंग्स इन एग्जाम. हाँ, आई वुड सजेस्ट मेंस प्रिपरेशन मिड जैन या जैन एंड तक हो जाना चाहिए, डोंट प्रोलॉन्ग इट. और ऐसे कहा, मो इट्स अबाउट हाउ, अगेन कोहेरेंसी कोहेरेंसी कोहेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द वंस यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट एग्जामिनर वांट्स यू टू, तो आप रियली कितना भी अच्छा नॉवल एग्जांपल्स लेके आओ, कितने भी बुक्स पढ़ो, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक एनी सेंस टू हिम, और आपको बुरा मार्क्स आएगा. एंड यू शुडंट रियली बी वंडरिंग क्यों बुरा मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर. सो सिंपल रखिए, सिंपल सेंटेंसेस रखिए. यू डोंट रियली हैव टू कॉम्प्लिकेट इट. जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा. बस कोहेरेंसी मेंटेन कीजिए और अच्छे एग्जांपल्स लाइए जो आपको आपको अच्छे लगे, नॉट रियली कि वो मार्केट में अच्छे. और मैंने कोई कोचिंग मटेरियल नहीं लिया है एसए के लिए, मगर थोड़े लोग लिए हैं, उनको हेल्प किया होगा. आई जस्ट स्टडी हाउ एसे. आई लव एसेस बिकॉज इट डजंट डिमांड यू टू राइट इन वन वे, राइट? सो ऐसे यू कैन रियली फिगर आउट कीजिए. अभी 3 months है, राइट एसेस. अगर हो सके तो एवेल्युएट कर लीजिए, या फिर किसी और को पूछिए, कोई टॉपर मिल गया तो. सो दैट्स अबाउट एसेस. एंड GK paper, is there a need to prepare for GK paper? If you are GK paper, think आई थिंक GK पेपर के लिए आपको बस मेंस 365 कर सकते हैं. मेरे पास मेंस 365 का समरी पीडीएफ था. आई जस्ट रिवाइज्ड एंड गेव माय GK पेपर व्हिच वेंट वेल. आई गॉट एवरेज मार्क्स इन इट. सो yeah, test series, I think test series do play an important role, not for the sake of clearing exam, but आपको evaluate कर सकते हो कि कहाँ stand करते हो आप लोग. Nothing beyond it. Basic sources एक ही करना है ना for 1 हाँ exactly. So जो भी सोर्स ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग ए सोर्स लो, बट जो भी सोर्स ले रहे हो, मेक श्योर वो एक तो कोई किसी टॉपर ने सजेस्ट किया हो, और एक उसी को स्टिक ऑन करो. डोंट रियली वेंचर इनटू डिफरेंट सोर्सेस. उसी को स्टिक ऑन करो, रिवाइज इट मेनी टाइम्स. डोंट डोंट चेंज योर बेसिक सोर्सेस. जितना होता है एक ही पे रखो. हाँ, राइट. सो हाँ, और फोकस मोर ऑन एथिक्स, फोकस मोर ऑन एसेस. नहीं, आई डोंट थिंक एसए को टीम्स में करके आप करना चाहिए. बट आई थिंक देर इज सम टॉपर दैट आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट हु इट इज. दे हैव पुट अ गुड लिस्ट ऑफ बुक्स इन देयर चैनल जो एसेस के लिए पढ़ सकते हो. डोंट रियली रीड बुक्स, उनका समरीज पढ़ सकते हो. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दैट बुक इज ट्राइंग टू से. और आई अगेन देयर इज नो नीड टू कोट दैट बुक. बस पढ़ो कि कैसे रहता है, हाउ ऑथर्स अप्रोच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. वैसे ही लिखना होता है आपको, नॉट दैट लैंग्वेज, बट वैसे अप्रोच करना होता है उस डायमेंशन को आपको. वो सीखिए, बस काफ़ी है. समरी से हो जाएगा आपका. यू डोंट रियली हैव टू रीड अ बुक. और सीसैट में मैथ्स वीक है, सीसैट स्ट्रैटेजी बताइए. हाँ, तो अगेन मैथ्स यू आर नॉट आस्क्ड टू मास्टर इट. आप कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल से जितना होता है उतना कर सकते हो. अगेन एज इट इज क्वालिफाइंग, अगर उसके मार्क्स काउंट होते तो बहुत डिफरेंस होता. बट जस्ट बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग, आप बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कर सकते हो और बेसिक्स समझिए उसका, rather देन मास्टरिंग हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. और एक मॉड्यूल होने के बाद उसके पीवीक्यू सारे सॉल्व कीजिए जो भी सीसैट के हैं. वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व, अगेन इंपॉर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व इन क्वांट. जैसे सब, अगर आपको फाइनल आंसर नहीं भी मिला तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ गलत जा रहे हो. सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, तो जैन तक आप अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपका समझ सकते हो कैसे सॉल्व करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट रियली गिविंग टेस्ट. एक 5-6 टेस्ट तो दे दीजिए सीसैट के, जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट विद इट. और इफ देयर इज एन या न्यूबी, देखिए सब न्यूबी थे इस एग्जाम में. देयर इज नो वन हु इज मास्टर्ड एसे बिफोर अटेम्प्टिंग इट. देयर आर फ्यू पीपल, बट देन minority is what I'm going to say. But then हाँ, सब न्यूबी थे. एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग एसेस इन अ वेरी वियर्ड वे. माय फर्स्ट एसे वाज वेरी बैड. इतना बुरा था कि मैं कभी नहीं पढ़ा उसको फिर से, और मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अगर ऐसे लिखोगे तो क्लियर नहीं होगा. तो फर्स्ट एसे बहुत गंदा होने वाला है. डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ इट. और बस इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए किसी को एडवाइस पूछिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. टॉपर्स के पढ़ते रहिए एसेस, अच्छे 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 लिखते हैं टॉपर्स के एसेस.
उनके पढ़ते रहिए और बुक्स के समरीज पढ़िए या फिर कोई अच्छे केस स्टडीज देखिए यूट्यूब में. Uh, so that will suffice for essay. Essay is one thing where you can't have a tactic. You have to master it on your own. खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा. राइट एज मेनी एसेस एज पॉसिबल. करंट अफेयर्स मैगजीन कौन सा करें? न्यूज़पेपर के नोट्स. न्यूज़पेपर के नोट्स तो मत बनाइए बिकॉज वी रियली कांट मेक नोट्स और इतना टाइम नहीं है हमारे पास. करंट अफेयर्स मैगजीन मैंने PT 365 किया था और मंथली भी शायद किया था विजन का, बट बस मेंस के लिए किया था मैंने वो. और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़िए मगर नोट्स बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, टाइम नहीं है उतना करने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट करंट मंथली मैगजीन काफ़ी है अगर आप कर सकते हो, या फिर PT 365 भी बहुत काफ़ी है. मेक श्योर आप मेंस का अपडेटेड रहे. बाय दिसंबर आपको दिसंबर का मेंस जितना भी हो उतना आपको पक्का रहना होता है मेंस का. देन फ्रॉम जनवरी स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, नॉट रियली अबाउट मेंस. क्योंकि आउट प्रीलिम्स के बाद नेक्स्ट टाइम बस 88 डेज मिलने वाला है, तो यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग इन योर मेंस. तो अभी के लिए तो बस दिसंबर तक बस मेंस कीजिए, जनवरी से प्रीलिम स्टार्ट कीजिए. So approach current affairs in two different ways. One is for prelims, one is for mains. Society, social justice, governance के resources. हाँ ओके. सो सोसाइटी और सोशल जस्टिस का मैंने शायद ऑनली यूएस से किया था. गवर्नेंस मेरे क्लास नोट्स थे. इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी भी क्लास नोट्स थे, बट देन कौन सा बुक था आई एम नॉट रियली एबल टू रिमेम्बर. बहुत बहुत फेमस बुक है मार्केट में, वही कि शायद चलता है इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर कोई भी ले सकते हो आप. बिकॉज दिस सब्जेक्ट्स मोर डिपेंड मोर अबाउट हाउ यू आर राइटिंग आंसर रादर देन विच सोर्स यू आर फॉलोइंग. डिसास्टर मैनेजमेंट के टॉपर्स नोट्स होंगे PDF के जो बुलेट पॉइंट्स में रहते हैं, प्रेफरेबली उनका देख लीजिए, काफ़ी है. बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी हाई रिवॉर्डिंग. और इन्वेस्ट उतना मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, उनको रिवाइज कीजिए ज़्यादातर. और हाँ, सोसाइटी सोशल जस्टिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ मिला के उनका कुछ 100-120 मार्क्स हो जाता है, तो उसके लिए शायद मैंने ऑन डे इसका रेफर किया था. हाँ, उतना ही है. गवर्नेंस का मेरा क्लास नोट्स था. और एक आई डोंट थिंक देर इज एनी मटेरियल फॉर गवर्नेंस इन आउटसाइड. तो आपको थीम्स देखने पड़ेंगे और थीम्स पे गूगल करके आपको कोई नोट्स बनाना पड़ेगा, या फिर टॉपर्स के बहुत सारे नोट्स होंगे, देखिए उनको एक बार और खुद अप्रोच कीजिए उस सब्जेक्ट को. हाँ, GS4 आई थिंक, GS4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मुदित जैन सर का शायद बुक था एथिक्स का. उनका वो बुक पढ़िए, बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने PYQs को भी डाइसेक्ट किया है कैसे अप्रोच करना है. आई थिंक GS4 विल हेल्प यू दैट वे. और केस स्टडीज, once your theory part is done, only then start writing case studies. वरना बहुत weird हो जाएगा आपका और case studies लिखते हुए. You will not really be able to get good marks out of it. तो पहले थियरी पार्ट कीजिए. एंड आई वुड सजेस्ट अगेन श्रुति शर्मा मैम का जो नोट्स है उनका एथिक्स का, अगर अभी भी है तो शायद उनको रेफर कीजिए. वरना मुदित जैन सर का जो PDF, सॉरी नॉट PDF, वो जो बुक था वो रेफर कीजिए. वो दोनों बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं आई थिंक, और इजी लैंग्वेज में है. सो यू रियली डोंट हैव टू वरी कि आपको समझ में आएगा या नहीं. और आप गूगल कर सकते हो हमेशा. एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गूगल कोई भी वेबसाइट में, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे डायमेंशंस पे सिलेबस है. तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ बिग हर्डल. बट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. एथिक्स बहुत स्कोरिंग है, सो यू शुड रियली नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर इट. आई वुड से गो बियॉन्ड दिसंबर टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स. अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. यू कैन कंटिन्यू टिल February और मार्च, क्योंकि इतना एफर्ट नहीं लेगा और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा उस पर. या सो आई थिंक आई हाउ फार एथिक्स हेल्प्स इन essay. A lot. Everything helps in essay. Don't really say कि nothing helps in essay. But then don't read ethics for the sake of essay. So आप अगर ethics पढ़ रहे हो तो read it for the sake of GS4. essay again don't run behind sources कि कैसे essay अच्छा बनाया जा सकता है. आप कोई भी एग्जाम्पल से essay अच्छा बना सकते हो. डोंट रियली वरी कि मेरे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है. जो भी इंफॉर्मेशन है उससे अच्छा essay लिखा जा सकता है. सो इट्स अबाउट हाउ यू राइट. आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती है. हाँ, सो आई विल कम टू माय रिवीजन स्ट्रैटेजी. बट हाँ, ऐसे के लिए एवरीथिंग हेल्प्स इन ऐसे.
but at the same time approach it as a separate thing, not just how you approach a GS. Revision strategy. So I would write sectional tests a lot rather than full length tests, क्योंकि मुझे सेक्शनल टेस्ट मतलब आई वुड गेज कि मैं कहाँ पर हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत लिखता था मैं. सो आई थिंक आई रिवाइज 5 और 6 टाइम्स मेरे जो सेक्शनल टेस्ट थे. आई डेंट गिव 6 राउंड्स ऑफ इट, 2 ही राउंड दिया, बट देन उसको बहुत बार रिवाइज किया. और हाँ, दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन थिंग. 6 टाइम्स करना होता है एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. वंस योर मेंस प्रेप इज डन, इमीडिएटली जंप इनटू प्रीलिम्स. और एक 5-6 बार तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए. एंड आई थिंक यू हैव टू फॉलो अ रूल जहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में बहुत टाइम लेगा, सेकंड इटरेशन में कट इट डाउन बाय 10-20%, थर्ड इटरेशन में उसका अगेन 20-30%, कीप इंक्रीजिंग. यू हैव टू कम टू अ पॉइंट वेयर एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट तो रिवाइज कर ही दोगे. सो उस बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होता है एंड बिकॉज इंफॉर्मेशन रिटेन भी करना होता है. सो दैट वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. मैप्स को कैसे याद करें? अगेन आई थिंक मैप्स, देखिए, एक गलती जो करते हैं हम मैप्स के लिए, हाँ, एक गलती जो करते हैं मैप्स के लिए, दैट इज कि हम एक दिन में बहुत सारे चीज स्टार्ट कर देते हैं. सपोज एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सारे मैपिंग एक ही दिन कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड वे टू स्टडी मैप्स. आई वुड से गो बाय रीजन स्पेसिफिक. उस क्लाइमेट को एक बायोम्स में डिफरेंशिएट कीजिए मैप्स को, और उस बायोम में क्या चल रहा है, क्या क्या लेक्स है, क्या क्या रिवर्स है, वो पढ़िए. That would, I think, be more important strategy for maps, countries, rivers, lakes. क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेट से ही आप आंसर कर सकते हो कि हाँ, शायद इस क्लाइमेट में लेक्स बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, इस क्लाइमेट में ये रिवर ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर कोई शायद सोर्सेस है, ग्लेशियर्स है वहाँ पर रिवर्स के लिए. सो अंडरस्टैंड इट इन दैट वे. मैप्स के लिए बायोम्स या फिर एक एक कॉन्टिनेंट सेपरेट करके, अगर बड़ा कॉन्टिनेंट हो उसको 2 हिस्से में बांट के बस एक एक हिस्सा रिवाइज कीजिए. टेक इट फॉर 2-3 डेज. वन एक हिस्सा 2-3 डेज और एक एक घंटा दीजिए हर रोज. डोंट ट्रीट मैपिंग एज सेपरेट एंटिटी. और हाँ, देर आर अदर क्वेश्चंस. हाँ, इनिशियली तो आंसर राइटिंग बहुत गंदा था. आई थिंक आई टुक लाइक सॉलिड 2 or 3 months टू गेट कॉन्फिडेंस इन आंसर राइटिंग. सो आई थिंक, yeah, take your time, build your confidence, get it evaluated. I think that would suffice. और you learn, and I mean enjoy writing answers. Take it as a challenge कि आपको एक अच्छा आंसर लिखना है and just run behind it. जितना टाइम लेगा उतना टाइम लेगा. It's not a strict time for everyone कि हाँ, मुझे 1 मंथ में हो गया तो तुझे भी 1 ही मंथ में होना चाहिए. आपका सेपरेट हो सकता है, मेरा सेपरेट हो सकता है. इन्वेस्ट एज मच टाइम एज इट डिमांड्स. कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं, नहीं कोचिंग लगाना ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ, गाइडेंस मुझे पर्सनली गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था. वही जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं इसलिए शायद नहीं कर पाया क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था. आई डिडंट नो हाउ टू अप्रोच एनी सब्जेक्ट. हाँ, मगर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन कोचिंग. हाँ, सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैं बोलता हूँ, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई डिडंट नो हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट. आई इन्वेस्टेड 2 or 3 months इन एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, जो कि बहुत गंदा था. और हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने और अभी भूल गया सब कुछ. सो मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो आप याद रखो, रिवाइज करो. सो इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और उस सब्जेक्ट जितना डिमांड करता है उतना इन्वेस्ट करो. एग्जाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ो. सो ये मिस्टेक था मेरा कि यू आई डिडंट नो हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम. और बस ऐसे मत पढ़ो कि आपको कोई जर्नलिस्ट बनना हो या फिर क्रिटिक करना हो किसी को. पढ़ो बस एग्जाम के लिए. तो अगर पॉलिटी ज़्यादा मार्क्स दे रहा है तो पॉलिटी पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो. इकोनॉमी ज़्यादा दे रहा है तो इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट करो. आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल इतना नहीं दे रहा है तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो. तो इसके ऊपर ये फोकस में रखिए, ये जो मैंने नहीं किया था. और सेकंड था मेरा, जो भी मेरा था, आई थिंक आई इन्वेस्टेड वेरी लेस टाइम इन रिविजन. वेरी वेरी लेस टाइम इन रिविजन. बस 1 या 2 बार किया था एज आई सेड अर्लियर, और इट डिडंट यील्ड एनी रिजल्ट. मैंने शायद फुल एंड टेस्ट भी दिया था 2 या 3. आई वाज एबल टू स्कोर 60-70 इन इट, जो अच्छा नहीं है. आई थिंक यू हैव टू गेट अबव 100 इन एनी टेस्ट दैट यू आर राइटिंग. सो वो टारगेट कीजिए. और हाँ, सो फोकस मोर ऑन रिविजन रादर देन जस्ट गिविंग टेस्ट या फिर करंट अफेयर्स मटेरियल के पीछे भागना. अगेन,
ये जो गलती कर रहे हो ये बहुत गंदा होता है अगर आप बेसिक्स ना करो और बस करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम दो. As soon as your basics is done, you can jump into anything that you want. But then, as long as your basics is not done, तब तक आप current affairs मत ही करो. There is no point of doing current affairs. तो ये गलती मत करना प्रीलिम्स के लिए. और मेंस के लिए आप प्रीलिम्स के बाद करूँगा बोल के मत रहिए. जितना होता है प्रायर टू प्रीलिम्स आप कवर अप कर लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द मेंस. अगर थोड़े बच गए तो ठीक है, जो छोटे वाले सब्जेक्ट होते हैं वो ठीक है. बट जो बहुत यील्डिंग सब्जेक्ट्स है जैसे जीएसएम में सोसाइटी जियोग्राफी, जीएस2 में से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स, जीएस3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट ठीक है, मगर इंटरनल सिक्योरिटी कर लीजिए. ये 3 सब्जेक्ट्स तो हो जाना चाहिए आपका. एनवायरनमेंट तो वैसे भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो ही जाएगा. और हाँ, स्टिक्स हो गया. मॉक इंटरव्यू के बारे में आ जाएंगे. वो कैप बिल्डिंग के लिए हाँ इम्पोर्टेंट, देखिए सिंपल वर्ड्स रखिए, जितना होता है उतना कर सकते हैं आप. और आप कोई भी, मैं अभी भी मेरे पास एक वोकैबुलरी ऐप है, मेरा वोकैबुलरी उतना बढ़िया नहीं था तो आई थिंक आई स्टिल फॉलो द टैब्स. न्यूज़पेपर में सफिशिएंट वर्ड्स मिल जाएंगे आपको तो उतना ही यूज़ कीजिए. अगेन आपको कोई मास्टर नहीं करना है उसमें तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट. अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के आ जाइए, अच्छा ही मिल जाएगा. आई डोंट थिंक आपको बहुत बढ़िया वर्ड्स यूज़ करने होते हैं. डिसेंट वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे कर रहे हो वो काफ़ी है. प्रिपेयर फॉर गवर्नेंस अगेन एक सोर्स नहीं है उसके लिए, काश मैं बता पाता. बट देन या थीम्स पे देखिए, थीम्स वो बुलेट पॉइंट्स में है, उनके ऊपर नोट्स बनाइए. और पीवाईक्यूज बहुत अच्छा गाइडिंग लाइट है गवर्नेंस के लिए, बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन. सो पीवाईक्यूज पे नोट्स बना लेंगे तो आपका गवर्नेंस का नोट्स भी बन जाएगा. हाँ, तो इंटरव्यू का आ जाएंगे. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम जीएस 1 to 4 और एससीएस दैट आई कैन आंसर, और उसके बाद मैं इंटरव्यू का बात करूँगा. So I guess there is none. इंटरनेशनल रिलेशन सारे बेसिक्स ही है. आई डोंट थिंक देर इज एनी करंट अफेयर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. एक या दो पॉइंट ऐड कर सकते हो जो हो रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है डेवलप होने में. इंटरनेशनल रिलेशन इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग टू चेंज. तो आपको जो अगर 3 साल पहले न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अब और अभी पढ़ोगे तो उसी के ऊपर डेवलपमेंट्स होते रहेंगे. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के ऊपर ही डेवलप होते रहेंगे. थोड़े एग्रीमेंट्स हो गए रहेंगे, थोड़े अभी भी पेंडिंग रहेंगे. बट देन हाँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिक्स ही इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर पार्ट है. बस एक या दो पॉइंट आपको उसके ऊपर लिखना है जो करंट अफेयर्स में आते हैं. सो डोंट रियली वरी अबाउट करंट अफेयर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इट्स मोर और लेस बेसिक्स. आईआर फ्रॉम स्क्रैच आप कोई भी शायद पीटी 360 सॉरी मेंस 365 ले सकते हो आईआर का, और वही नोट्स बन जाएगा आपका. सो डोंट वरी. यूपीसीसी से इतना डिफरेंस तो नहीं है, बट देन हाँ मेंस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा. प्रीलिम्स में आई थिंक यूपीएससी आईएफएस इज बिट मोर डिफिकल्ट देन सीएससी. हाँ, it is more difficult, or what you're going to do is approach it in different dimensions. Once prelims is done, forest service becomes relatively more easy compared to CSC, or CSC gets more difficult than IFS. तो CSC में entire game lies in mains, prelims थोड़ा relatively कम difficult है. IFS का progressively उतना difficult नहीं होता जाएगा. It will get difficult, but then I don't think it's as difficult as CSC. But then because you're supposed to do two optionals, तो थोड़ा कवर करने में थोड़ा इशू होगा. बट दैट शुड बी योर प्रायर स्ट्रैटेजी. अगर आप IFOS के लिए ट्राई कर रहे हो तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि आप IFS का जो भी 2 ऑप्शनल है वो दिसंबर. और इंटरव्यू में अगेन इट्स नॉट रियली अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू आर बिल्ट, राइट. सो आप ऐसे हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन, हाउ यू डाइसेक्ट इट, दैट्स गोइंग टू मेक मोर सेंस. सो आई थिंक दैट पे CSC और CSC में स्कोप ज़्यादा है, एज इन देयर आर मोर टॉपिक्स टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट. बट देन IFS में उतने टॉपिक्स नहीं है क्योंकि इट्स मोर टेक्निकल ऑफ सर्विस. तो इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड मतलब फॉरेस्ट एस्पेक्ट में ही और आपके डैफ में. बट देन या करंट अफेयर्स कुड रियली बी आस्क्ड. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कई करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा. तो इन दैट वे दोनों के पर्सनालिटी टेस्ट सेम है. CSC का बस मेंस बहुत एलैबोरेट होता है, बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस है. फॉरेस्ट सर्विस का उतना ड्रेनिंग प्रोसेस नहीं है, एंड इट इज स्टिल एलैबोरेट. इट्स नॉट ईजी बाय एनी मींस, बट देन या इट्स रिलेटिवली ईजी.
AR फ्रॉम स्क्रैच जो बताया था वही मेंस 365 का लीजिए और उस पे आंसर PYQ का आंसर दीजिए। IR एक वो सब्जेक्ट है, आप PYQ के आंसर लिखोगे तो वो काफ़ी रहेगा। I do not want to name the teacher without consent, uh, but then I took coaching from Insights IAS और उनके एनवायरनमेंट टीचर ने मुझे मतलब उनके नोट्स बहुत अच्छे थे। एंड फर्दर एडिशन आई वुड सजेस्ट यू आप मंथली मैगजीन लीजिए। मंथली मैगजीन से एडिशन बहुत यूज़फुल हो सकता है। अगर बहुत ड्रेनिंग लग रहा है तो आप अगेन PT 365 लेके कर सकते हो, या फिर कोई भी अगर अगेन आई एम सेइंग मंथली मैगजीन और PT 365 बिकॉज आई रेफर टू इट। अगेन देयर इज नो प्रमोशन ऑफ दैट वन पर्टिकुलर मटेरियल, कोई भी ले लो वही होगा, तो डोंट रियली वरी अबाउट इट। एनवायरनमेंट हाँ, क्योंकि नोट्स वर गुड बिकॉज दे वर डिवाइडेड इनटू सर्टेन थीम्स और रिवीजन बहुत इजी हो गया और नोट्स अपडेट करना बहुत इजी हो गया। तो या सो एनवायरनमेंट इन दैट वे हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मोर और लेस मेरे सारे क्वेश्चन सही आए थे एनवायरनमेंट के, एक्सेप्ट थोड़े जो एनिमल्स के ऊपर थे उतना उतना परफेक्ट नहीं हुआ वो। सो और हाँ, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। मॉक और अगेन डोंट रियली डिफरेंशिएट मॉक और रियल इंटरव्यू। दोनों जगह आपके पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। मेरे थोड़े मॉक से आए थे, मेरे थोड़े नहीं आए थे। हाँ, तो इट्स बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो लोग क्या पूछने वाले हैं। बट देन आप खुद को बिल्ड कर सकते हो कि 5 अनजान लोगों जो हाइली क्वालिफाइड हैं उनके सामने आप कैसे बात करोगे और हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ विल यू कन्वे योर आइडियाज। ये आप ट्रेन कर सकते हो मॉक में। आई गिव जस्ट 5 मॉक्स फॉर माय फॉरेस्ट सर्विस इंटरव्यू और सेपरेट हर एक इंस्टीट्यूट में बस एक ही मॉक दिया मैंने, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो कि हर न्यू मेंबर के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट मॉक बहुत गंदा था, दे वर नॉट सो ग्रेट रिव्यूज, बट देन एज इट प्रोग्रेस मेरे रिव्यूज बहुत अच्छे होते गए। आई स्कोर्ड 198 आउट ऑफ 300 इन माई इंटरव्यू मार्क्स। सो या आई थिंक अप्रोच मॉक इंटरव्यू इन जस्ट अ वे टू सी कि आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आपको वो फियर है, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज तो सब अच्छे ही होते हैं एंड यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट एंग्जाइटी और लर्न द वे टू कम्युनिकेट, बस यही इंपॉर्टेंट है। I started my coaching in July of 2022, I guess, July or June of 2022, and 2023 was my immediate attempt after coaching, and probably the last attempt. I don't know. Yeah, yeah. So हाँ, ये दोनों इतने ही है। I don't think you can go more about prelims अगर आपको prelims का कोई डाउट है, क्योंकि थोड़े लोग लेट ज्वाइन हुए थे। अगर नहीं है तो आई से कि मैंने सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए थे जो FAQs में थे और प्रॉब्लली मेरे हाँ। और एक बताना चाहूँगा कि मेंस का प्रिपरेशन पे ध्यान ज़्यादा देना होता है। आई थिंक इट्स ऑलरेडी अ थिंग इन हमारा अप्रोच की मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गिव मोर प्रायोरिटी टू इट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आई एड्रेस मोर और लेस सारे। नहीं, आई थिंक आई वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ ब्यूरोक्रेट हु इज इन सर्विस कि मेंटरशिप अच्छा मिलता है इनसाइट्स में, दैट्स द ओनली, एंड आई टुक देयर एडवाइस। और हाँ, आई आई इट डजंट रियली प्ले अ रोल कोचिंग। आई डोंट थिंक कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इज व्हाट आई फेल्ट। सो once you learn how to study a subject, I don't think coaching plays an important role, but then you need excuse me, yeah, you need to know how to approach this exam, so उसके लिए mentorship बहुत important होता है। just give me a minute। हाँ, so focus more on your preparation rather than कि दूसरे लोग या फिर कोचिंग क्या कर रहे हैं, और नोट्स खुद का रखिए rather than following just toppers notes। इंस्पिरेशन लीजिए, देखिए उनसे क्या कर रहे हैं और try to make your own notes, don't make their notes as your notes। और हाँ, that would be more to it। जी जी, yeah। I think on this note, I can end this session if
there is no other questions. Yeah, yeah, that's for it. That's it for today. Yeah, thank you, thank you all.